अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 के। हमने आंसर क्वेश्चंस करने हैं। बॉक्सेस वाले तो हमारे हो चुके हैं, मगर आज हमने हमारे जो आंसर क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं वो करने हैं कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कैसे हैं। तो अपने अपने जो पास जो आपके पास बुक्स हैं वहाँ पे पेज नंबर 20 निकाल लें। और ये है कि इस अलग से मैंने जो है इनको लिख लिया हुआ है, वो मैं खुद टाइप करके बना लिए क्वेश्चंस के आंसर्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जो है उनको करते रहें, ठीक है। एक जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू personally define patriotism? Can you provide an example from your own life on community that illustrates your definition? या सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's efforts are crucial यानी लाजमी थी इन सिक्योरिंग a separate homeland for the Muslim एक्स्ट्रा। तो इसके जो है ना ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, पेट्रोटिज्म टू मी मीन्स आ प्रोफाउंड लव यानी गहरा, ये एक बहुत ज़्यादा गहरी मोहब्बत एंड लॉयल्टी यानी अकीदत टू वंस कंट्री कपल्ड with a sense of responsibility and contribute to its progress and defense. In my community, patriotism is often illustrated through acts of volunteerism such as participating in cleanliness or drives to keep the environment healthy or supporting local businesses to boost the economy. Next question है, importance of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's effort. तो कायद आज़म्स efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims because they were facing political and social challenges in the subcontinent. His leadership and vision united the Muslim community and gave them a sense of identity, purpose, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखें तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, ये जिस तरह यहाँ पे मैंने आपके साथ जहाँ पे कॉमा इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क, जहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं और जहाँ पे कैपिटलाइजेशन को इस्तेमाल किया गया, आप भी वैसे ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, क्वालिटीज़ ऑफ सोल्जर्स as heroes. The soldiers mentioned in the text are considered heroes due to their unwavering courage, selflessness, and dedication to the country's defense. They demonstrated extraordinary bravery, a sense of duty, and the ultimate sacrifice by laying down their lives for their motherland. Maintaining patriotism in a global society. The spirit of patriotism can be maintained by actively participating in community service, staying informed about national issues, supporting local initiatives, and promoting national pride through cultural celebrations. एग्जाम्पल्स के तौर पर उसने एग्जाम्पल्स मांगी थी ना क्वेश्चन में। आप ये क्वेश्चन अपने बेटा देखते जाएंगे, अपने बुक को सामने रखें। ये बस क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये चूँकि मैंने चैप्टर सारा समझा दिया, ये भी के क्वेश्चंस भी एक दफ़ा मैंने बता दिए, तो अब ये बस आपको इसके आंसर मिल रहे हैं, आपने इसको बस एज इट इज़ याद कर लेना, पढ़ लेना। इसके अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ SW स्कॉट जो है इसको तो कहते हैं कि SW स्कॉट कोट्स सजेस्ट डेट someone devoid of patriotic spirit lacks a deep connection and commitment to their country. I agree with this perspective to some extent, as a sense of belonging and pride in one's homeland is important for the personal and national identity. However, global connectivity should not determine the value of patriotism. Teaching patriotism in schools. Schools can teach patriotism by incorporating lessons and national history, cultural, and values into the curriculum. Activities such as celebrating national holidays, organizing debates on patriotic topics, and encouraging community service projects can instill patriotic values in students.
It is important for students to learn about patriotism to foster a sense of unity, pride, responsibility towards their country. इसके नीचे हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए. Small acts of patriotism. A small act of patriotism someone could do every day is to respect and follow the laws of the country, such as adhering to traffic rules and showing kindness to fellow citizens. These small acts contribute to the overall well-being and harmony of the nation. लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब कि हम दो टेक्स्ट से क्या सीखते हैं वगैरह. फ्रॉम दिस टेक्स्ट I learned that patriotism is a powerful and enduring spirit and drives individuals to act for the greater good of their country. It involves sacrifices, courage, and a deep-seated love for one's homeland, inspiring and guiding the nation in times of peace and adversity. ये तमाम इसके हो गए आंसर्स. इसको आप जो है सुकून से आराम से याद करें, पढ़ें. इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखने लगे हैं वो हमारे पास है इसके बी पोर्शन, जो यहाँ पे है ना बी पोर्शन जो है ये वाला. इसमें हमने आज इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं. वैसे तो ये दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी जो है ये पता होना चाहिए और हम देखेंगे. तो फर्स्ट है द वर्ड पैट्रियोट ओरिजिनेट फ्रॉम. कहाँ से ये आया है? लैटिन वर्ड है ये पैट्रियोट, ठीक है, तो इसका बी वाला ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. क्या है ये पैट्रियोटिज्म है, इसका सी वाला ठीक है. थर्ड है हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड. तो वो कौन थे? कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे. लियाकत अली खान से हमें पता वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो इसका ये सी वाला ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्मूला व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज ऑफ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. क्या थी वो हमें पता, सिमिलरिटी, इंटेग्रिटी एंड बी वाला ऑनर. विच इन विच वार्स डिड मैनी ब्रेव सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइफ फॉर पाकिस्तान. ये कौन सी है? ये हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है. और ये कारगिल की वार कब हुई? 1999, यानी कि 1999 में कारगिल की वार हुई. ये हमारा था आज का टॉपिक. इसमें मेनली हमने जो हमारे पास एमसीक्यू से कुछ वो और हमने अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको हमने देखा है और उनको हमने किया है. नीचे जो है सिंपली तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लेट्स सी कि डी जो पोर्शन है रीडिंग द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई वेदर ईच फैक्ट इज ओपिनियन. तो इसको देखते हैं. पैट्रियोटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी. ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है? तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी? फैक्ट है, यानी ओपिनियन हो जाएगी फर्स्ट. मैनी सोल्जर्स वर अवार्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवली. ये फैक्ट है, ठीक है. और इसके बाद नीचे जो हैं वो किस तरीके से दिए गए हैं. अच्छा, मैनी सोल्जर्स शोड ग्रेट ब्रेवली ड्यूरिंग द वार्स ऑफ. अब इसका क्या है? इस तरह करके हम कर लेते हैं कि ये इसका क्या होगा. मैनी सोल्जर्स शोड ब्रेव वगैरह जो है, तो ये इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है. मेजर तफैल मोहम्मद वाज अवार्ड निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन. अब जो ये वार में जो उनको दिए गए, तो ये क्या है? ये एविडेंस बेस है. ये एविडेंस बेस है. खैर, ये हमारे पास कुछ हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं. ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आने चाहिए, पता होने चाहिए. नीचे भी कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हैं. उसने कहा व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. कि जो मेन आइडिया, तो उसमें क्या है मेन आइडिया? कि पैट्रियोटिज्म रिक्वायर्स सेक्रीफाइस. और ये हकीकत बात है, ये बी वाला. इसके बाद आइडेंटिटी टू वैल्यूज़. बस ये तो एक ही इसमें था जो हमने देख लिया. खैर,
बस ये आज का हमारा इतना रिकॉर्डिंग करनी थी, इतना लेक्चर है आपका, इसको अच्छी तरीके से आप समझें करें। और क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे, और कुछ हमने MCQs देख लिए। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।